ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ऑडिट हैज बीन derived from Latin word audire to hear। ऑडिटिंग का डेफिनेशन मेरे बच्चों को खुला छोड़ेंगे, पानी डालकर भी पूछेंगे तो उन लोग बता देगा। ऑडिटिंग में डिफाइन एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन financial information of an entity, independent examination, financial information of entity, whether profit oriented or not, irrespective of size, legal form. Such an examination is conducted with a view to express an opinion. Independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not. मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट वाला हो कि लॉस वाला। आप लॉस वालों को गंदे नजरों से देखेंगे, आप प्रॉफिट कमाए आपके अच्छे से ऑडिट, लॉस कमाए ऊपर से ऑडिट करवा रहा है, ऊपर से कर देंगे तेरा ऑडिट ऐसा। irrespective of size or legal form. Profit matters के does not matter. Size and legal form, चाहे कंपनी का ऑडिट करें चाहे एलएलपी का ऑडिट करें, आप उतना ही एफिशिएंसी के साथ करिए। When such an examination is conducted with a view to express an opinion, person conducting the audit is known as दोस्तों पर्सन बताते नहीं आपको, पर्सन कंडक्टिंग द ऑडिट इज नोन एज क्या बताइए ना, ऑडिट पक्का। जब एग्जाम में क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर पूछेगा तो बेसिक प्रिंसिपल्स वाला लिख देना। ऐसे नंबर कौन सा में पढ़े थे? एथिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, नहीं याद आया। एथिकल रिक्वायरमेंट में तो ये तीनों आ जाता है ना, क्या क्या, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्किल एंड कॉम्पिटेंस। वर्क क्या हम दूसरों का यूज कर सकते हैं? हाँ। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। मेरे बच्चे जो एकदम चैंप है ये सब में। डॉक्यूमेंटेशन कैसे नंबर बताओ? 230। प्लानिंग का बताओ, एविडेंस का बताओ, पक्का। अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल 315 में पढ़े थे। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग 700, 701, 705, 706। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का? टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट as a whole are free from material. Financial statement taken as a whole, free from material mistake. To communicate required by the essays, report banana, and to obtain which assurance? Which assurance? What is this reasonable assurance? Objective of auditor is to obtain reasonable assurance. ये reasonable assurance क्या होता है? ये reasonable assurance क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस को बता सकते हैं क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। रीजनेबल एश्योरेंस मीन्स हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ, it is a high level of assurance regarding the financial statements which are showing true and fair view, but it is not a guarantee. Why it is not a guarantee? Because of inherent limitations of audit. Reasonable assurance means high degree of assurance, क्या? But still not a, मतलब auditor cannot reduce the audit risk to zero. Auditor can't reduce the audit risk to zero. Absolute assurance is a guarantee, but auditor does not give an absolute assurance or a guarantee. Auditor gives a reasonable assurance, which is a high level of assurance, but not a guarantee, because auditor cannot reduce the audit risk to zero because of inherent limitations of audit. There are three inherent limitations of audit. Nature of the financial reporting, nature of the audit procedure, nature of financial reporting, nature of audit procedure, limitation is respect to time and cost. हम लोग reasonable assurance क्यों देते हैं? हम लोग reasonable assurance क्यों देते हैं? Because of inherent limitations of audit. मेरे कुछ कुछ limitations है, 3 limitation। ये सब कोई बता सकता कौन सा ऐसे में लिखा हुआ है? Because of nature of financial reporting, nature of audit procedure, limitation with respect to time and cost. सबसे पहले बताओ क्या है? हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं? जब शॉर्ट नोट आएगा ना रीजनेबल एश्योरेंस को सब लिखना पड़ेगा। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ, it is a high level assurance but not a, because of inherent limitation of audit, because of which auditor cannot reduce the audit risk to zero. There are 3 reasons of inherent limitations of audit. Nature of financial reporting. Financial reporting मतलब कोई बताओ?
अकाउंटिंग। इंटर लेवल पर जिसको तुम लोग अकाउंट चिल्लाता है ना, फाइनल लेवल पर उसको बोलते हैं एफआर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का नेचर ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाना पड़ता है। अकाउंट्स में 100% एक्यूरेट कुछ नहीं रहता, इसमें बहुत सारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट, जिसका कोई एक्यूरेट एविडेंस। अब एस्टिमेट का कोई बिल थोड़ी ना होता है, तो मैं कैसे गारंटी दे दूं? बता तुम, ऑडिटर कैसे गारंटी दे दे कि तेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ट्रू एंड फेयर दिखाई दे रहा है? क्योंकि नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर which are made by the management and for which no accurate evidences are available. Nature of audit procedure. ऑडिट प्रोसीजर में तो सैंपलिंग भी होता है ना रे बाबा। और दूसरा बात, ऑडिट प्रोसीजर में तो हम लोग सारे इंफॉर्मेशन मांगते किससे? मैनेजमेंट से। वी रिलाई ऑन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिलाई ऑन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। इनवॉइसेस वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है? बिल्स वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह, वाउचर्स वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब और एक बात बता, अगर उसको फ्रॉड करना रहा, वो तो पहले से गलत इनवॉइस, गलत वाउचर बना करके रखा होगा, सही इनवॉइस सही वाउचर फाड़ करके फेंक रखा होगा, तो क्या ऑडिटर ब्रह्मा है? नहीं समझ में आया? मैं कैसे डिटेक्ट कर लूंगा फ्रॉड? कोई माई का लाल नहीं डिटेक्ट कर सकता है अगर फ्रॉड प्रॉपर्ली प्लान किया गया। हम बताते हैं, हम कितना भी अच्छे से ऑडिट कर लें, हम भगवान भी अगर बन जाए, अच्छा भगवान का बच करो, एक आम इंसान का बस का, आम इंसान क्या, इंसान का बस का बात तो नहीं है फ्रॉड डिटेक्ट करना, अगर फ्रॉड मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली मैनिपुलेट किया। हम एग्जांपल देते हैं, आज मान लो 5 करोड़ का परचेज किया, झूठा परचेज, खर्चा बुक करने के लिए 5 करोड़ का किसी पार्टी से खरीद लिया, प्रॉपर इनवॉइस वगैरह सब देखो, परचेज बिल भी ले लिया उस पार्टी से 5 करोड़, स्टॉक रिकॉर्ड में जाकर के एंट्री भी मार दिया, 5 करोड़ का परचेज बिल भी झूठा बनवा लिया पार्टी से, स्टॉक रिकॉर्ड, बिन कार्ड, सोर्स लेजर सब में एंट्री भी मार दिया, जर्नल भी मार दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इनवॉइस भी है, चालान वगैरह गुड्स का डिलीवरी भी हासिल कर लिया उस पार्टी से, उसको 5 करोड़ का चेक भी फड़ करके दे दिया पार्टी और उससे कैश कलेक्ट कर लिया। नहीं समझा? ये एक्चुअल में परचेज किया था 5 करोड़ का कि झूठा था? चेक सच्चा था कि झूठा था? चेक सच्चा था, तो झूठा परचेज के लिए क्या पागल है जो 5 करोड़ दे देगा? तो उस पार्टी से फिर क्या लिया? बैकडोर से कैश ले लिया, उसको उसका कट दे दिया, कमीशन दे दिया। अब ऑडिटर अगर आया, परचेज हुआ 5 करोड़ का, झूठा वॉइस चला, तुम्हारा गोडाउन में जाकर के हम देखते हैं, गोडाउन में मुठिया मजदूर लोग थोड़ी ना इतना किया होगा, गोडाउन में स्टॉक रजिस्टर में एंट्री है, स्टोर लेजर में तो ठीक है, हाँ बिन कार्ड में है। हो सकता है अंदर में तुम सबको सिखा पढ़ा दिए हो ये फ्रॉड के लिए। रुको, हम उस पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं, क्या भाई ईमेल किए उसको, क्या भाई परचेज हुआ था क्या? बोला हाँ। अच्छा, तुम भी हो सकता है झूठ बोल रहे हो। हम बैंक से जाकर के देखते हैं पेमेंट हुआ है क्या, 1-1 साल के लिए तो आउटस्टैंडिंग नहीं रह सकता, तेरी पेमेंट भी है। सॉरी, हम गलत तरीके से आपको देखे, शक किए, क्योंकि मेरा धंधा ही है शक करना। प्रोफेसर स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड। 3 चीज, स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द सर्कमस्टांसेस, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस। हम एक एविडेंस के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, क्रिटिकली असेस करेंगे। 3 चीज, क्वेश्चनिंग माइंड, skepticism means questioning mind, being alert to the circumstances, critical assessment of audit evidences। क्या हमने सब किया, फिर भी क्या हम इस फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकेंगे? इफ इट वॉज प्लान्ड बाय द मैनेजमेंट, तो ऑडिटर कैसे गिल्टी है? नहीं है गिल्टी। बाद में ये मैनेजमेंट खुद ही 2 साल बाद बोलता है हम ही है जो 5 करोड़ परचेज किए थे ना, झूठा था, और ऑडिटर को गाली गलौज कर, सड़क में जो भी आ जा रहा है वो ऑडिटर को गाली गलौज कर रहा है। बीकॉम के बच्चे ऑडिटर को गाली गलौज कर रहे हैं, बीकॉम के बच्चे।
कि ऑडिटर पापी है। अरे ऑडिटर भगवान का दूत नहीं है, अवतार नहीं है ऑडिटर जो फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेगा सारा, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। और यही सबक ऐसे 200 में लिखा हुआ है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ हैविंग क्वेश्चनिंग माइंड बीइंग अलर्ट टू द कंडीशंस व्हिच मे इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। मेरे को तो प्रोफेशनल क्या लगाना है, जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट मतलब एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल स्किल एंड केयर, ट्रेनिंग, नॉलेज। ओके, तो इसलिए ऐसे 200 हमेशा बोलता है रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट अराइजिंग आउट ऑफ फ्रॉड। बोलो, risk of not detecting material misstatement arising out of fraud is higher than the risk of not detecting material misstatement arising out of error. The risk of not detecting material misstatement arising out of fraud is higher than the risk of not detecting one arising out of error. ज्यादा मुश्किल क्या पकड़ना? हाँ, फ्रॉड का मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा मुश्किल है, एरर तो फिर भी पकड़ा जाएगा। एरर अगर हुआ होगा, मान ले परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर 5 करोड़ गलती से मार दिया इसका अकाउंट, तो जब हम गलती से ये वाला एंट्री अगर गलती से मारा हुआ है, हम बिल पूछे बिल का है, बोले बिल तो नहीं है, वो ये एंट्री गलती से मारा हुआ है, तो डिलीट कर देना। हाँ, डिलीट कर दीजिए। तो हमें आया क्या हुआ, गलती से इनवॉइस भी आ जाएगा, गलती से एंट्री मारा गया, गलती से इनवॉइस आ गया, गलती से चालान हो गया, गलती से स्टॉक इनवर्ड रजिस्टर आउटवर्ड रजिस्टर सब एंट्री हो गया, बिल कार्ड में एंट्री हो गया, गलती से चेक से भी पेमेंट हो गया सप्लायर को, वो सब तो पूरा फ्रॉड मैनिपुलेट किया गया। अब एक बीकॉम वाला टाइप का बच्चा बोलेगा जिस दिन परचेज हुआ था आपको उसी दिन गोडाउन में जाकर के चेक करना चाहिए, अरे उसको फांसी में चढ़ा दो। ऑडिटर क्या सटा हुआ रहता है मैनेजमेंट के साथ, क्लाइंट के साथ 12 महीना रहता है क्या? साल का ऑपरेशन खत्म हो गया, उसके बाद तो हम ऑडिट करने आए हैं। टाइम मशीन मेरे को उस दिन लेकर के चलो जिस दिन परचेज हुआ था, तो जब ये टाइम मशीन बन जाएगा तब ऑडिटर को तुम लोग गिल्टी ठोकना, उसके पहले नहीं। जैसे पंजाब नेशनल बैंक में जो फ्रॉड हुआ था नीरव मोदी वाला, उसमें ऑडिटर का 0 रोल है, ऑडिटर का कोई रोल नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनल कंट्रोल वीक था, ये ऑडिटर अपना रिपोर्ट में बहुत बार बोल चुका था कि उसका कोर बैंकिंग सिस्टम जो है वो हिला हुआ है। बैंकिंग सिस्टम उसका जो उसका इंटरनल कंट्रोल बनाया गया रिगार्डिंग द कोर बैंकिंग सिस्टम वो हिला हुआ है, ऑडिटर अपना रिपोर्ट में पहले ऐलान कर चुका था। उसके बाद भी अगर इन लोग अपना इंटरनल कंट्रोल नहीं सुधारा तो क्या ऑडिटर अपना पैसा लगा के सुधार दे? ऑडिटर चंदा कलेक्ट करके ले आए। क्लियर है क्या? रीजनेबल एश्योरेंस पूरा क्लियर है। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन ऑडिट, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन, क्या है था पिछला टर्म में, दबा करके बेटा ऑडिटर को जो जो करना है सब लिख देना। ऑडिटर क्या क्या करेगा बेटा, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू सिस्टम्स एंड प्रोसीड्योर, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, टू चेक कंप्लायंस ऑफ लॉज। समझ गए सर, पूरा ये सब लिख देना। हाईलाइट कर रखे ऑलरेडी, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू इन सिस्टम, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन, एसेट्स, लायबिलिटी, स्टैट्यूट का चेक करना, रिपोर्टिंग करना। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल याद है कहां पर पढ़े थे अपने? ऐसे नंबर कौन सा है? 220 नहीं याद आया? इस टर्म में याद करने के लिए एक एक्रोनिम बनाए थे, क्लियर परी। क्या है सर ये, कब मिलेगी हम लोग को ये परी? ये पढ़ने पर क्लियर परी बोल करके एक एक्रोनिम बनाया था ना, इसमें 9 पॉइंट था ऐसा 220 में। ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऑडिट रिस्क के सर दैट ऑडिटर में गिव एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन मतलब क्लियर रिपोर्ट इन स्पॉट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, फिर भी ऑडिटर क्लियर रिपोर्ट दे दिया। यही तो क्या है रिस्क। रिस्क क्या है सर? ठोक देंगे ऑडिटर को सर, गिल्टी मान लेंगे ऑडिटर को। हट, मैंने क्लियर रिपोर्ट दिया क्योंकि मुझे लगा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है जितना मैंने चेकिंग किया, बट हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, हम नहीं बोल रहे हैं।
बट ऑडिटर क्लाइंट को साफ साफ बोल देता है, देख जब भी मैं क्लियर रिपोर्ट देगा, यूजर्स whenever I am giving clear report, समझ जाना ऑडिट रिस्क है, क्योंकि मैंने तो पूरा 100% चेकिंग किया नहीं है, जो चेकिंग किया उस हिसाब से मैं क्लियर रिपोर्ट दे रहा है, पर हो सकता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, यूजर को घबरा क्या है, हो सकता है। ऑडिट रिस्क का 3 कंपोनेंट, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड क्या बताओ, डिटेक्शन। ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला याद है, इट्स अ फंक्शन ऑफ RMM into DR. RMM is IR into CR. It ranges from 0% to 100%, 0 to 1. Definitions वगैरह पढ़ चुके थे। ये ऑडिट रिस्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला, RMM into DR. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज IR into CR. It ranges from 0 to 1, यानी 0% to 100%. सैम्पलिंग रिस्क याद आ रहा है? ऑडिट रिस्क पता है ऐसे नंबर कौन सा में था? हाँ, और सैम्पलिंग रिस्क कौन सा में था? हाँ पक्का। ऑडिट तो हम लोग लाइव में भी कितना बार रिवीजन कर चुके हैं, याद आ रहा है अब? थैंक यू सर। सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है? मैंने प्रोसीजर किसके ऊपर लगाया, पॉपुलेशन के ऊपर कि सैंपल के ऊपर? आई ऑलवेज चेक द, आई हैव अप्लाइड द प्रोसीजर ऑन द, और मैं सीना ठोकर के क्या बोला, जो सैंपल का रिजल्ट पॉपुलेशन का रिजल्ट, जो सैंपल का रिजल्ट। ऐसा नहीं भी तो हो सकता है, आई एम चेकिंग द, कमेंटिंग ऑन, बाय चेकिंग द सैंपल इफ यू आर कमेंटिंग ऑन। हो सकता है कि अगर जो प्रोसीजर तुमने सैंपल के ऊपर लगाया, अगर वही सेम प्रोसीजर तुम पॉपुलेशन के ऊपर लगाते हो सकता है रिजल्ट कुछ और आता। सैंपल रिजल्ट एंड पॉपुलेशन रिजल्ट मे नॉट बी सेम इफ द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव अप्लाइड ऑन द सैंपल वर आल्सो अप्लाइड ऑन द पॉपुलेशन। इस रिस्क को क्या बोलते हैं? सैंपलिंग रिस्क। ऑडिटर चेक्स द सैंपल बट ऑडिटर concludes that sample result and population result are which may not be same if the same procedure which were applied on the sample will also applied on the population. याद है कंप्लायंस और सब्सटेंटिव लेवल, दो लेवल पर सैंपलिंग रिस्क कराइज होता है। कंप्लायंस लेवल पर दो होता है, रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस। सब्सटेंटिव लेवल पर रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इनकरेक्ट रिएक्शन। ज्यादा डेट्रीमेंटल कौन है? ओवर रिलायंस एंड इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, उससे तो गलत रिपोर्ट आ जाएगा, बट अंडर रिलायंस और इनकरेक्ट रिजेक्शन में गलत रिपोर्ट आएगा कि काम बढ़ेगा। एडिशनल प्रोसीजर ये देखो दिखा दिया, एक है ओवर रिलायंस और एक है इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस, इससे इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन आ जाएगा। एक है अंडर रिलायंस और एक है इनकरेक्ट रिजेक्शन, इससे एडिशनल वर्क आ जाएगा। ये रहा ओवर रिलायंस, अंडर रिलायंस, इनकरेक्ट रिजेक्शन। फिर अपने ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंसेस में आ गए थे ना दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई सीआईडी जांच नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में अकाउंट्स का स्पेसिफिक आइटम्स ही चेक हो रहा है विद अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। सुना? इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद अ स्पेशल पर्पस। मेरा वन ऑफ द ब्रांचेस ह्यूज बजट दिखा रहा है, ए ऑडिटर जब देखो 4 दीवारी के अंदर बैठ करके टिक टिक करता है, तुम एक काम कर, बी यूजफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन, उस ब्रांच में जाओ, सारा डेटा से जाकर के अच्छे से चेकिंग करो कि इतना बजट हो रहा है, चलो जाओ चलो जाओ ऑडिटर। यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, ओ आई एम सॉरी। तो ऑडिटर एटीट्यूड में मर जाएगा, वो तो क्लाइंट के बोले बोले काम, वो तो एम्प्लॉय, ठीक है मत जा तुम। हम अपना ब्रांच में, जो एक ब्रांच में ह्यूज बजट हो रहा है ना, रास्ते से किसी को भी पकड़ करके चेक करवा देंगे, तुम मत जाओ, इसको पकड़ करके चेक करवाएंगे, रास्ते से किसी भी को भी उठा करके हम अपना इन्वेस्टिगेटर बना देंगे, मान लो तुमको उठाएं। मतलब बोलने का तात्पर्य यह है कि इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो सीए हो भी सकता है, नहीं हो सकता। पक्का? डेफिनेशन लिख दीजिएगा इन्वेस्टिगेशन ऑडिट का। कंपनी के लिए ऑडिट क्या रहता है? इन्वेस्टिगेशन हमेशा। स्टैट्यूटरी ऑडिट खाली क्वालिफाइड कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन कोई भी। ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, इन्वेस्टिगेटर भी इंडिपेंडेंट रहेगा। एक जन ऑलरेडी खून चूस रहा है, तुम एक एम्प्लॉय है इन्वेस्टिगेटर, ऐसे फॉलो होगा, वो ऐसे फॉलो करेगा कि ऐसे ही कर देगा। शेयरहोल्डर अपॉइंट करता है ऑडिटर को जनरली, इन्वेस्टिगेटर को जनरली बीओडी। ऑडिटर सैम्पलिंग करता है, इन्वेस्टिगेटर भी सैम्पलिंग करेगा। खाली बजट चेक करने दिए थे, एक डेटा का खाली चेक करके आ गया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का फ्रॉड को डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेटर का तो हो सकता है ना रे। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट। कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग का होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, कम ऑन। कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बैंकिंग,
इलेक्ट्रिसिटी ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ICAI, नाम तो सुना ही होगा। स्पेसिफाइड एंटिटी, जैसे टैक्स ऑडिट वगैरह कंपल्सरी है ना, टैक्स स्टडी से सिखाया होगा ना तेरे को। जिसका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाता है बिजनेस में, प्रोफेशन में 50 लाख से ज्यादा। एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, क्या एम्प्लॉय लोग के ऊपर नजर रहेगा, मॉरल चेक रहेगा ऑन एम्प्लॉइज, किसका मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, नेगोशिएशन ऑफ लोन, बेनिफिशियल टू शेयर होल्डर। गिव मी 4 एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट। मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, नेगोशिएशन ऑफ लोन, बेनिफिशियल टू शेयर होल्डर, सेटलिंग ट्रेड और क्या बताओ ना, लेबर डिस्प्यूट, मिनिमाइजिंग व्हाट वेस्ट। फिर हम लोग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने 5 थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है। एक ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट 5 थ्रेट्स है। एक क्या हो जाता है सेल्फ। किसने 5 थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट। सबसे पहला क्या है? अरे तुम लोग क्यों बिक जाते हैं पैसे के लिए? 5 करोड़ देंगे बिक जाओगे? थ्रेट तो है ना, बिको नहीं बिको अलग बात है, थ्रेट तो है ना। वरना तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, लोन गारंटी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। यही सब थ्रेट से बचने के लिए डिस्क्वालिफिकेशन आएगी ना। एक बात बता, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या हो गया? लोन दे दिए क्लाइंट, अगर ऑडिटर को क्या दे दिया? लोन दे दिया, एडवांस फीस भर भर के दे दिया, सारा कंटिजेंट फीस दे दिया कि देख मेरे अगर प्रॉफिट होगा तो ही तेरे को फीस देंगे, प्रॉफिट में तेरे को 5 करोड़ फीस देंगे, लॉस में तेरे को 5,000। अब वो ऑडिटर मेरे को प्रॉफिट लाने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? अगर सही अकाउंटिंग कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है, ऑडिटर बोला सही का दरकार नहीं है, प्रॉफिट लाने का दरकार है, क्योंकि उसका फीस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं समझ आया तो इसलिए कंटिजेंट फीस अलाउड नहीं है। ये सब थ्रेट्स है। ICAI और हम लोग क्या बैठे रहे हाथ पे हाथ रख करके? ये सब थ्रेट से बचने के लिए सेफगार्ड बनाया गया, डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया गया ना ऑडिटर का, कि जो इंडेटेड रहता है 5 लाख से, जो दूसरों के लिए गारंटी रखा है 1 लाख से ज्यादा, उन लोग को ऑडिटर बनने नहीं देंगे। शेयर होल्डर है तो ऑडिटर बनने नहीं देंगे। तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट समझना है, रुपया पैसा कम हो गया। सेल्फ रिव्यू मतलब समझा रहे? सेल्फ रिव्यू, सेल्फ खुद ही काम किया, खुद ही चेक किया। तुम अपना पेपर खुद ही लिखा, मार्क्स भी खुद बढ़ाए, इंडिपेंडेंट रहेगा। इंस्टीट्यूट वाला देखो बहुत खर्चा होता है एग्जाम लेने में। अब से काम करो ना, घर में तुम लोग को क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, तुम लोग आंसर शीट चेक करके मार्क्स बढ़ा करके हम लोग को दे देना, तुम लोग इंडिपेंडेंट रहेगा। कितना लोगे? 100 में से कितना मार्क्स दोगे अपने आप को? देखो तो अगर ऑडिटर खुद ही अकाउंट्स बना रहा है और खुद ही ऑडिट कर रखा है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा? तभी तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया ना। 144 वाला सर्विस, जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग करेगा उसको ऑडिट करने नहीं देंगे। एडवोकेसी थ्रेट में क्या होता है? वकालत करना। वेरी गुड, कौन बोला? एक्सीलेंट। एडवोकेसी मतलब क्या होता है? वकालत। ऑडिटर आकर के क्लाइंट का बचाव कर रहा है, नहीं मेरा क्लाइंट दोषी नहीं है, नो। और ऑडिटर लॉ का भी डिग्री ले रखा है, तो क्लाइंट के लिए वो कोर्ट में भी लॉयर बन करके जा रहा है। और सब लोग फिर इसे क्या ना, ऑडिटर का इज्जत कम हो जाएगा। सोसाइटी क्वेश्चन करेगा, तेरे को क्या है रे, तुम अपना क्लाइंट को इतना बचाने के लिए क्यों जा रहे हो? तो तुम भी तो उसके साथ फंसा हुआ है। हो सकता है क्लाइंट अगर फंस जाए तो फिर क्लाइंट उगल देगा, मेरे को कुछ आता ही नहीं था, ये सिखाया, ऑडिटर बोला, नहीं समझ आया। तो एडवोकेसी थ्रेट समझ में आ रहा है? ऑडिटर क्लाइंट को इस हद तक बचाने के लिए उतावला हो रखा है कि उसका केस जा करके लड़ रहा है, विच विल क्वेश्चन इज इंटीग्रिटी। देखो एडवोकेसी थ्रेट, ऑडिटर प्रमोट्स और इज परसीव्ड टू प्रमोट क्लाइंट्स ओपिनियन टू एन एक्सटेंट वेयर पीपल में बिलीव यार ऑडिटर का ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग क्या बताओ ना, कॉम्प्रोमाइज। एग्जाम्पल, क्लाइंट का एडवोकेट बन गया, ठीक है। फैमिलियरिटी थ्रेट, हम साथ साथ हैं, फैमिली ऑडिटर बन गए। पिछला 40 साल से हम इसको ऑडिट कर रहे हैं, जितना रिलेशन, जितना टाइम ये अपनी वाइफ के साथ स्पेंड नहीं किया, उतना ऑडिटर के साथ इसने अपना टाइम स्पेंड किया। एक रिश्ता नहीं बन जाएगा रे बाबा? बोलो, अब सच बताओ, हम लोग इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्लास तुम लोग यहीं पर किया होगा रे बाबा।
लॉ ऑडिट एसएमएस मिला करके फटाफट, तो एक रिलेशन बन जाता है। अब अगर तेरा पेपर मेरे पास आया चेक करने, कॉमर्शियल टीचर्स आर नॉट अलाउड टू चेक फॉर दिस रीजन ओनली, मेरे पास आया, भले तुम गलत लिखा है, क्या हम 0 दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे, फैक्ट है ये। तो इसलिए तो ना रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट आया, नहीं समझ में आया तो सारे कंपनीज के ऊपर नहीं है। अरे है ना, इंटिमिडेशन थ्रेट, आईएफएसी ये भी बोला, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, कि ऑडिटर लोग का गलती नहीं है, ये थ्रेट में इंटिमिडेशन से दोहराना धमकाना, नहीं समझ में आया। हम क्लाइंट है, ऑडिट रिपोर्ट तुम नहीं बनाएगा, हम बना चुके हैं, तुम खाली साइन करेगा। बना रहा है, गोली खा लेगा? नहीं, एक बार गोली खा लोगे तो जान जाए बट ओपिनियन ना जाए, जान जाए इंडिपेंडेंस ना जाए। बोलो ऐसा रहेगा तो? ऐसे बच्चे आर्मी में ट्रेनिंग देना होगा इन लोग को, मतलब लोग ऑडिटर से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा देते। मतलब अब ये सब थ्रेट से बचने के लिए क्या करें बताओ? एक एक तो हम लोग को भी पिस्तौल दो और चलाने का लाइसेंस भी दो। ये सेफगार्ड्स था, तो 500 थ्रेट था। आईएफएससी ने 5 थ्रेट बताए इंडिपेंडेंस को लेकर के। सेल्फ इंटरेस्ट, ओए ओए नॉनसेंस, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, इंटिमिडेशन, फैमिलियरिटी। स्केप्टिसिज्म कौन सा ऐसे में डिफाइंड है को बता सकते हैं? 200 3 चीज था ना, इट्स एन एटीट्यूड दैट इन्वॉल्व्स क्या? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू कंडीशंस which may indicate possible क्या बताओ ना मिसस्टेटमेंट, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ क्या बताओ ना ऑडिटर। स्केप्टिसिज्म का एग्जांपल्स है। हमको कब स्केप्टिकल हो जाना चाहिए? जब एक एविडेंस कुछ और बोल रहा है, दूसरा एविडेंस कुछ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ऐसा कंडीशन विच इंडिकेट्स क्या बताओ ना फ्रॉड। ऐसा कंडीशन जो सजेस्ट कर रहा है कि यार यहां पर और एडिशनल प्रोसीजर लगाओ, कुछ तो गड़बड़, हाँ तो और प्रोसीजर लगा ना, कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांस और है। ऑडिटर जो है ना बहुत ही मिलनसार होता है, उसका बहुत सारा एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स रहता है बाद बाकी डिसिप्लिन के साथ। सबसे गहरा रिश्ता किसके साथ? अकाउंट्स एंड लॉ। और देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस। अरे ऑडिटर को साइकोलॉजी समझना पड़ेगा ना लोगों का, बिहेवियरल साइंस, मैथ सेट्स आना चाहिए क्या? नहीं तो क्या सैम्पलिंग क्या करोगे, कैसे करोगे सैम्पलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाइंट सारा डेटा कंप्यूटर में डाल देता है, स्टार्ट भी नहीं करना था, खाक ऑडिट कर सकेगा? एफएम आना चाहिए, प्रोडक्शन आना चाहिए। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स है जो इंस्टीट्यूट इशू कर रखा है। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में हम चार्ट बनाए थे, याद आ रहा है ना? बोलो, इंट्रोडक्टरी मैटर के ऊपर 100 से 199, अभी तक इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं किया। डू रिमेंबर द चार्ट दैट वी ड्रॉन? कैसे बच्चे हैं? फिर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर 200 से 299, रैप के ऊपर 300 से 499, एविडेंस 500 से 599, अदर 600 से 699, ऑडिट कंक्लूजन 700 से 799, स्पेशलाइज्ड एरिया 800 से 899। कितना कितना स्टैंडर्ड है फटाफट बता देगा। कितना कितना स्टैंडर्ड है? 9 6 11 है ना रे? कैसे बच्चे हैं, मतलब कैसे बच्चे हैं? इसमें 9 है, जिसका नहीं लिखा हो लिख लो। 0 पहला में 0, फिर 9, 9 6 11 3 6 3। टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? हाँ 38। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तो सिलेबस में कितना हुआ? 35। बाबा जी तरह लिखोगे तो नहीं होगा ना, अब तक लिख लेना चाहिए था 0 9 6 11 3 6 3, टोटल 38। दिस इज नॉट इन सिलेबस, तो इन सिलेबस कितना? 35। ओके बढ़िए। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस याद है? पूरा डिक्टेशन दिए थे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस में कैसे कैसे लिखना है। स्टूडेंट फिर का याद है? पूरा डिक्टेशन दिए थे।
जिसको शेड्यूल 3 नहीं आता वो बैलेंस शीट भी यहां से पढ़ सकता है। जॉइंट ऑडिट का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस 11-12 की तरह थ्योरी है। क्वेश्चन आंसर्स अभी वापस से डिस्कस करना संभव नहीं है, रिवीजन क्लास में ऑलरेडी लाइव में हो चुका है। चैप्टर 1 में अकेले ही तुम्हारा देखो लगभग 50 क्वेश्चन था। 59 यस चैप्टर नंबर 2 बहुत ही सिंपल चैप्टर है 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। लेट अस गेट इट। सबसे पहले ऑडिटर्स एंगेजमेंट का ऐसे नंबर बताओ 210 क्या था और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे 210 है। अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एज पर ऐसे 210। ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर भेजता है क्या क्लाइंट को बिफोर एक्सेप्टिंग कि आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट? बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट कि देख भाई अकाउंटिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, IC is accounting management, IC management, auditor opinion, and I want an unrestricted access to the books of account. और उसको बोल देते हैं कि there are chances of material misstatement in spite of the fact that the auditor will be properly planned. हम कितना भी अच्छे से ऑडिट कर ले फिर भी रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगा, ये पहले उसको बता दो। और मेरा काम फ्रॉड एरर डिटेक्ट करना नहीं है, ये भी उसको बता दो। ऑडिट एक एक्टिविटी है कि प्रोसेस है? ऑडिट टेक्निक याद है 3 इडियट्स की तरह पढ़ाए थे। ऑडिट टेक्निक क्या है? टेक्निक धीरे में हम लोग दिस आर द टूल्स विथ विच ऑडिट इज डन। दिस आर द आप पूछे मेरे से ऑडिट टेक्निक क्या है? टूल्स विथ विच ऑडिट इज डन। प्लीज एलाबोरेट। आप पूछिए टेक्निक क्या है? सर हर एक टूल जिससे हम लोग ऑडिट करते हैं टेक्निक है। सर हर वो चीज जिसे हम लोग ऑडिट करते हैं टेक्निक है सर। हाँ इलाबोरेट। सर जैसे हम लोग हाउसिंग करते हैं टेक्निक है सर। हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं वो टेक्निक है सर। सर हम लोग एनालिसिस करते हैं ना की फाइनेंशियल रेशियो वो टेक्निक है सर। हम लोग जो पोस्टिंग चेकिंग करते हैं वो टेक्निक है सर। वाउचिंग टेक्निक है, वेरिफिकेशन टेक्निक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक है, इंटरनल कंफर्मेशन टेक्निक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन टेक्निक है, पोस्टिंग चेक करना टेक्निक है, टोटलिंग चेक करना टेक्निक है। नहीं याद आया? अप डाउन करके नहीं होगा। टूल्स विथ विच ऑडिट इज डन। वाउचिंग टेक्निक है, वेरिफिकेशन टेक्निक है, की फाइनेंशियल रेशियो टेक्निक, इंटरनल कंफर्मेशन टेक्निक है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन टेक्निक है, पोस्टिंग चेकिंग टेक्निक है, टोटलिंग कास्टिंग टेक्निक है। ऑडिट प्रोसीजर में एक्सप्लेन कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव इंक्लूडिंग क्या बताओ ना, रैप रिस्क। कौन सा ऐसे में डिफाइंड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? 315 वो तो लिख दिया है तब बताए हो। कोई डिफाइन कर सकता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में भी डिफाइंड है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, प्रिलिमिनरी एंड सब्सिक्वेंट। ओके, प्रिलिमिनरी नॉलेज कहां से मिलता है? क्लाइंट का एनुअल रिपोर्ट। प्रिलिमिनरी नॉलेज क्या है? ऑडिट एक्सेप्ट करने के पहले की बाद में। प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद में तो पहले। और क्लाइंट का क्या दिखेगा? एनुअल रिपोर्ट। सब्सिक्वेंट नॉलेज क्या होता है? आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। जैसे डिस्कस विद किसके साथ? मैनेजमेंट। अरे सब्सिक्वेंट नॉलेज मतलब ऑडिट एक्सेप्ट करने के। कैसे करोगे? मैनेजमेंट, visit clients premises, discussion with employees। ऑडिट प्लान और प्रोग्राम में क्या फर्क होता है? पहले क्या बनता है? प्लान की प्रोग्राम। हाँ, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनता है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड लेआउट ऑफ द प्लान। बोलो, इट इज अ डिटेल लेआउट ऑफ द प्लान। प्रोग्राम का फायदा क्या है? क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, असिस्टेंट लोग ठीक से सिलेक्ट हो जाता है, ऑडिट सिस्टमेटिकली होता है,
जो असिस्टेंट गलत करेगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में लिखा हुआ रहता है ना किस असिस्टेंट का क्या काम का जिम्मेदारी है। हम लोग प्रोग्राम में कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडिट को गाइड कर सकते हैं, एविडेंस अच्छे से मिलता है। डिसएडवांटेज ये है, प्रोग्राम में जो बात लिख देते हैं वो बहुत मैकेनिकल हो जाता है ना, जो तेरा प्रोग्राम में लिखा हो तुम वैसे ही काम करेगा, वेरी मैकेनिकल, वेरी रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इनएफिशिएंट असिस्टेंट को अगर हम तुम ये काम नहीं किया, प्रोग्राम में नहीं था, नहीं किए, इनएफिशिएंट असिस्टेंट लोग बहाना, लूजर्स विल फाइंड एक्सक्यूजेस, एंड इनएफिशिएंट लोग का तो बहाना मिल जाता है, और एफिशिएंट वाला लोग का इनिशिएटिव मर जाता है ना। आज अगर हम तेरे को खुला छोड़ दे, तुम अपना कलाकारी दिखाता, नया नया तरीका लगाता, बट तुम अब नया नया तरीका नहीं लगाएगा, प्रोग्राम में जो लिखा वही लगाएगा। इट्स द इनिशिएटिव। कब गिव मी 4 बेनिफिट्स एंड 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोग्राम। पहले एडवांटेजेस बताओ। क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, प्रोग्राम होने से क्लियर सेट ऑफ क्या हो जाता है, इंस्ट्रक्शन। सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट बिकम्स इजियर, सिस्टमेटिक काम होता है, असिस्टेंट कैन एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एक्ट्स एज अ गाइड, एविडेंस। जैसे मैकेनिकल बहुत हो जाता है, रिजिड इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, इनएफिशिएंट स्टाफ में टेक शेल्टर बिहाइंड द प्रोग्राम टिल द इनिशिएटिव। इंटरनल ऑडिट का दूसरा नाम बताओ, कंटिन्यूअस। स्टैट्यूटरी ऑडिट का दूसरा नाम फाइनल। ऑडिट नोटबुक क्या है, बाउंड बुक है क्या? फटाफट एग्जाम, ऑडिट नोटबुक इज जिसमें जो भी मैटर मेरे सामने आ रहा है वो हम नोटबुक में क्या कर ले रहे हैं, रिकॉर्ड, और जो क्वेरी तुरंत सॉल्व वो भी रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, और उसमें बाद में फिर क्या करेंगे, रिप्लाईज ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑडिट नोटबुक इज अ बाउंड बुक in which large variety or matters observed during the course of audit are recorded. Query भी रिकॉर्ड होता है, रिप्लाई भी रिकॉर्ड होता है। एग्जांपल, ऑडिट क्वेरी इज नॉट क्लियर, इमीडिएटली मिसिंग वाउचर, अनसैटिस्फैक्टरी बुककीपिंग अरेंजमेंट, इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर फ्यूचर। बोलो वापस से, क्या क्या नोटबुक में क्या क्या रिकॉर्ड करोगे? जो क्वेरी तुरंत क्लियर नहीं हुआ, अनसैटिस्फैक्टरी बुककीपिंग अरेंजमेंट, एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। फॉर्मेट ऑफ ऑडिट नोटबुक हम दिखाए थे ना मेरे बच्चों को, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्राफ्ट ऑडिट नोटबुक। वाउचर नंबर याद कर लेना, अकाउंट का नाम, फॉर्मेट खाली में याद रख लेना ना, वाउचर, अकाउंट अमाउंट, क्वेरी, हाउ डिस्पोज। बोलो, वाउचर, अकाउंट अमाउंट, क्वेरी, हाउ डिस्पोज। 5 ही रहेगा नोटबुक में, क्या क्या, वाउचर, अकाउंट अमाउंट, क्वेरी, हाउ डिस्पोज। ये सब अंदर का याद करके मम्मी को मत सुना देना, कलाकारी दिखाना। वाउचर नंबर 38 एडवर्टीजमेंट का था, अरे 18 नंबर भी हो सकता है, नहीं समझ आया, कुछ भी वाउचर नंबर लिख देना। मान लो अकाउंट एडवर्टीजमेंट, अमाउंट 1600, क्या क्वेरी था, एमडी का सैंक्शन नहीं था, एमडी का साइन नहीं था, हाउ डिस्पोज, ऑब्टेन। रेंट बिल नहीं था, हाउ डिस्पोज, ऑब्टेन। रिसिप्ट चाहिए था, हाउ डिस्पोज, पार्टी रिमाइंडेड। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर, ऐसे नंबर कौन सा पे पढ़े थे, 230। क्वालिटी कंट्रोलर कहां पढ़े थे, 220। सैंपलिंग कहां पढ़े थे, सैंपलिंग का याद है, ये 500 टाइप होता था, रैंडम, सिस्टमैटिक, मॉनिटरी, हैपहैज़र्ड एंड ब्लॉक। फिर एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग 11 12 का क्वेश्चन है। सरप्राइज चेक, क्लाइंट को बिना बताए आ जाओगे क्या ऑडिट करने? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल रूटीन आवर्स के बाद क्लाइंट को सरप्राइज देने के लिए, समझना, सरप्राइज, जैसे होटल में अपने सीखे ना नाइट ऑडिट। सरप्राइज चेक डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है? जवाब चाहिए, जवाब चाहिए मेरे को, डिजायरेबल है कि अनडिजायरेबल है? सरप्राइज चेक डिजायरेबल पार्ट ऑफ द ऑडिट है। कहां का सरप्राइज चेक करोगे, कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टोर स्टॉक, समझना। फ्रीक्वेंसी ऑफ सरप्राइज चेक कौन डिसाइड करता है, ऑडिटर। रिजल्ट ऑफ सरप्राइज चेक शुड बी कम्युनिकेटेड टू किसको, एंड ऑडिटर जब सरप्राइज चेक के बारे में किसको बता दिया, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट फिर एक्शन लेगा कि एक्शन नहीं लेगा, एक्शन। ऑडिटर शुड सैटिस्फाई हिमसेल्फ कि एडिक्वेट एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजर ऑन मैटर्स कम्युनिकेटेड बाय। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सरप्राइज चेक ऑडिट रिपोर्ट में डालेंगे। ओए, क्या जरूरी है हम सरप्राइज चेक के बारे में ऑडिटर्स रिपोर्ट में डालेंगे? जवाब दो। अगर हम क्या है, सेटिस्फाइड कि मैनेजमेंट प्रॉपर एक्शन ले लिया, हम सरप्राइज चेक के बारे में हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में ना लिखें। सरप्राइज चेक डिजायरेबल है, कैश, स्टोर्स, ये सब सरप्राइज चेक होता है। फ्रीक्वेंसी, साल में कितना होगा सरप्राइज चेक, ऑडिटर डिसाइड करेगा। मैनेजमेंट को रिजल्ट बताएगा कि नहीं बताएगा, और फिर मैनेजमेंट क्या लेगा, और अगर ऑडिटर सेटिस्फाई है तो रिपोर्ट में नहीं डालेगा। डॉक्यूमेंटेशन कितना होगा, ये साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोसीजर, मेथड सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा नंबर बताओ, रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन, क्या पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडिया में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ। एक्सपीरियंस ऑडिटर, ये बता दो कि तुम मान लेंगे कि तुम पढ़ा लिखा करके आए। कौन सा ऐसे में एक्सपीरियंस ऑडिटर का डेफिनेशन है?
230 में। और एक्सपीरियंस ऑडिटर किसको बोलते हैं? जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एंड अंडरस्टैंडिंग है 4 बातों का। क्या क्या? 4 बातों का। इन 4 बातों का उसको ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसेस आता है, एसएस आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आता है। ऑडिट प्रोसेस आता है, एसएस आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द एंटिटी समझ में आता है उसको, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आता है। ऑडिट प्रोसेस, एसएस, बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑडिट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आता है। फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू प्लानिंग ओनली। यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। बेंचमार्क इन मटेरियलिटी, हाँ, ऐसा नंबर कौन सा? 320। एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक आइटम है कि बहुत सारा आइटम? तो हर आइटम का मिसस्टेटमेंट इक्वल अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट मटेरियल माना जाएगा कि अलग अलग परसेंटेज? वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग आइटम का क्या अलग अलग मटेरियलिटी लेवल हो सकता है? जी हाँ, बनाया। तो मटेरियलिटी लेवल 5% रहेगा कि 10% की 4%? क्या वो अलग अलग आइटम्स के लिए वेरी कर सकता है क्या? तो कैसे हम मटेरियलिटी डिटरमाइन करेंगे? ये तो मेरा क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट। याद है ना? इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। फिर भी कुछ फैक्टर्स इंस्टीट्यूट ने दिया है दैट में अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एप्रोप्रिएट बेंचमार्क। जैसे पहला फैक्टर जो इंस्टीट्यूट ने दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंचमार्क, बोलो। एलिमेंट्स ऑफ क्या बताओ ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट के लिए अलग बेंचमार्क, लायबिलिटी के लिए अलग, इक्विटी के लिए अलग एलिमेंट्स होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पक्का? फिर बेंचमार्क कभी भी अफेक्टेड रहेगा यूजर लोग कितना अटेंशन देता है। अगर यूजर लोग उस आइटम को ज्यादा अटेंशन देता है, यूजर लोग उस आइटम को, यूजर लोग अगर किसी एक आइटम के ऊपर ज्यादा अटेंशन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसके ऊपर मेरा बेंचमार्क का लेवल ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। मेरा सहन शक्ति कम रहेगा रे। अगर यूजर अपना इकोनॉमिक डिसीजन एक पर्टिकुलर आइटम देख करके लेता है तो उस पर्टिकुलर आइटम में हम चाहेंगे कि बेंचमार्क कम रहे, मटेरियलिटी लेवल क्या रहे? कम। नहीं समझाया? नहीं समझा? If user takes a decision by looking at a particular item, I will allow more statement in that particular item, less misstatement. More misstatement, less misstatement. So materiality level will be less. नहीं समझाया? चाय पानी का खर्चा में हम ज्यादा सहन शक्ति कर सकते हैं। क्या एक यूजर शेयर का पैसा, एक यूजर शेयर बाजार में पैसा किसी कंपनी में इसलिए लगाता है चाय का खर्चा को देख करके, उसका स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस देख करके? तो वहां मटेरियलिटी लेवल ज्यादा हम अलाउ कर सकते हैं। मान लो चाय का खर्चा से फॉर एग्जांपल 5 लाख था, तो मान लो से फॉर एग्जांपल हम यहाँ मटेरियलिटी लेवल मान लो 10% अलाउ कर दिया, 5.5 लाख तुम किया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है चलो। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि इसके ऊपर, इस आइटम के ऊपर यूजर लोग का ज्यादा ध्यान नहीं। समझ गए सर? तो बताओ ना, फैक्टर्स ऑफ बेंचमार्क बताओ ना। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जांपल एसेट के लिए अलग, लायबिलिटी के लिए अलग, रेवेन्यू के अलग, इक्विटी के लिए अलग। Will have auditor will consider whether is this an item on which users are generally tend to be more focused. If this is an item on which users are generally tend to be more focused, then materiality will be less. Nature of the entity तो देखना ही होगा हम लोग को, और उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये तो बहुत सिंपल है। नेचर ऑफ एंटिटी एंड इट्स फिर क्वेश्चन आ गया था। तुम लोग को लग रहा है, देखो हम यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस के अंदर भी सब क्वेश्चन डाल रखे हैं ताकि क्वेश्चन ज्यादा दिखे नहीं। देखो ए बी 1 2, फिर भी कम करते करते पहुंच गया। वो सब कब डिस्कस करेंगे? पूरा कोर्स ज्वाइन करिए, पूरा कोर्स। आइए, लगभग 65 लॉ का, लगभग 45 ऑडिट का, लगभग 30 क्लासेस ऐसे नहीं है, इसका कितना होता है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस समझ जाओ, मतलब इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है तेरे को। ये 230 है और ये
अरे बोलना 500 पक्का, मतलब कॉपी से पूरा जो डिक्टेटेड है। चलिए आइए, कुछ याद आ रहा है? 500 में से पढ़े थे ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिटर इंस्पेक्शन, और बताओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसेस, इंक्वायरी। इंक्वायरी पहले होता है। हाँ, मेरे कॉपी में प्रॉपर ऑर्डर में डिक्टेटेड है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, रीपरफॉर्मेंस। याद है? सब डायग्राम अपने कॉपी में भी बना रखे हैं। ऑडिट प्रोसीजर दो प्रकार के होते हैं, एक क्या है रैप और एक क्या है अदर्स। अदर्स में कोई बता सकता है ये क्या है? टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? कंप्लायंस। और ये क्या है? सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में क्या आता है? वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और क्या आता है? एनालिटिकल प्रोसीजर। असर्शंस याद है क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशंस बाय मैनेजमेंट। ये सब पक्का से करके जाना, क्लास में पूरा बैठा करके गोदी में याद करवाया गया है डिफरेंट असर्शंस। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस याद आ रहा है? बेस्ड ऑन नेचर क्या होता है? विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल। बेस्ड ऑन सोर्स क्या होता है? इंटरनेशनल। ज्यादा रिलायबल इंटरनेशनल में कौन है? एक्सटर्नल याद है, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो बराबर होता है ना। अच्छा, विजुअल, डॉक्यूमेंट्री, ओरल में सबसे ज्यादा रिलायबल कौन है? डॉक्यूमेंट्री, फिर है विजुअल, फिर है ओरल। रिलायबिलिटी कब बढ़ जाता है एविडेंसेस के ऊपर? व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, बोलो फटाफट बोलो। कंट्रोल क्या है? स्ट्रॉन्ग है। व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स। इंटरनल कंट्रोल इज ऑब्टेन डायरेक्टली बाय होम? ऑडिटर को जो खुद एविडेंस मिलेगा वो ज्यादा रिलायबल है ना। डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलेगा, ज्यादा रिलायबल है ना ओरिजिनल की फोटोकॉपी। लेकिन अगर ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो क्या फोटोकॉपी से काम चलाएं? हाँ, ये सब भी तो एविडेंसेस के ऐसे हैं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन 505, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मेरा पहली बार है कि तुम्हारा पहली बार है कि साथ में अपना फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है साथ में। व्हेन अ न्यू क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑडिटेड फॉर द, आप पहली बार ऑडिट नहीं कर रहे हैं, मैं भी पहली बार ऑडिट नहीं कर रहा, अपना का साथ में एंगेजमेंट पहली बार हुआ है। तो इसमें मेरे को क्या चेक करना पड़ता है याद है? सब्सिक्वेंट 560, गोइंग कंसर्न का ऐसा नंबर कौन सा? 570। Just a revision, we can just revise. How can we do 45 classes in 2 hours? एक याद ताजा करने के लिए। क्लियर है क्या? ये सब क्वेश्चन आंसर अगर छोड़ करके जाओगे ना तो एग्जाम मत जाना, मजाक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पहले तुम कौन से ऐसे पढ़ोगे? जवाब चाहिए मेरे को। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। चलो एक बार पहले 315 में आ जाते हैं। ठीक है, वो 315 खुद से कर लेना, इस मैथ में अभी है नहीं। ऐसे वाले तुम्हारे ऐसे पोर्शन में होगा ना रे बाबा 315। अरे उसी में तो था 315 का नाम क्या? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग आरएमएम टू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग आईसी। ऐसे में नहीं था, वो डेफिनेशन में था। टेल मी द पेज नंबर राइट नाउ, चैप्टर 4 का। क्या पेज नंबर है रे? ओ 57 है मेरा, क्या बात है? अच्छा ठीक है, मेरा बुक और तुम्हारा बुक। चलो भी आओ। रिस्क असेसमेंट एंड आईसी। यार इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये नहीं पता? क्या होता है ऑब्जेक्टिव इंटरनल कंट्रोल? मैनेजमेंट बनाता है कि ऑडिटर बनाता है? क्यों बनाता है मैनेजमेंट आईसी? मैनेजमेंट आईसी क्यों बनाता है? So that the transactions are executed in a proper manner. Transactions are executed in proper manner. Transactions are promptly क्या बताओ तो? Recorded. Transactions are executed in a proper manner. They are promptly recorded.
एसेट्स और क्या बताओ ना, सेव गार्ड एंड रिकॉर्डेड एसेट्स। जो तुम एसेट क्या कर रखे हो, रिकॉर्ड, वो कंपेयर भी कर सकोगे ना एग्जिस्टिंग एसेट एट रीजनेबल इंटरवल। एंड इंटरनल कंट्रोल का और एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड। सर आप तो बोले थे नहीं, अबे ऑडिटर का नहीं है, इंटरनल कंट्रोल तो लोग बनाते ही इसलिए हैं। गिव मी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी so that the transactions are properly executed as per management general or specific authorization. Transactions are properly executed as per management general or specific authorization. Transactions are properly executed as per management general. Transactions are properly executed as per management general or specific authorization. मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बना रखा है, अब इंटरनल कंट्रोल भी बनाना जरूरी है ना, ताकि मैनेजमेंट का डायरेक्शन क्या हो सके फॉलो। तो इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है so that the transactions are properly executed as per management specific or general authorization. Promptly recorded, assets are safeguarded. Transactions are promptly recorded, assets are safeguarded. Recorded assets are compared with the existing. 4 पॉइंट में दो दो तो जोड़ा बना करके करो। पहला 2 जोड़ा आईसी का क्या था, ट्रांजैक्शंस, दूसरा 2 एसेट्स, पहला 2 ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। एसेट्स से 2 पॉइंट, सेफगार्डेड, एक्जिस्टिंग आर कंपेयर्ड विद द रिकॉर्डेड एसेट्स। ओके, क्या तो पॉइंट बता दो ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसी फटाफट। बॉय उधर, बॉय तेरे पीछे वाला मुंडी, अभी नीचे से कोई रख कुछ नहीं होगा, तुम ही से पूछो, व्हाइट बॉय तो पीछे वाला, तेरे बगल वाला। 4 ऑब्जेक्टिव्स आईसी। अरे बोलना, ये तो रहा कॉस, अरे कॉस पॉइंट नंबर 1, 4 ऑब्जेक्टिव्स आईसी। वो तो दिख गया था जो हम नीचे कर रहे थे, वही वाला पॉइंट तेरे को दिखा है, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ व्हाट, बीच में इंग्लिश हिंदी मिक्स करके लिखेगा एग्जाम में। बाबा जी बनना है ना तो हिमालय जाइए, ध्यान लगाइए, वहां तो मेहनत को भी मिल सकती है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बाबा जी की तरह बस बैठ करके आराम से एकदम लोटा भी ले लो और घंटा भी ले लो और हिलाओ। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी, याद करने का तरीका बता रहे थे हम। 2 ट्रांजैक्शन था और 2 एसेट्स। खड़े रह करके तुम अच्छा लगते हो। ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड, हम बता रहे हैं, अगर बच्चे ध्यान नहीं लगाते हैं तो फिर गलत बात, गलत बात है कि नहीं, आप बताइए। हम पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं, हम याद करने का तरीका भी बता रहे हैं। आप ना, ये अभी मेरे ख्याल से हम 4था बार पढ़ा रहे होंगे एडवांटेजेस ऑफ आईसी, नहीं आज की क्लास में बोल रहे हैं, पर आपको तो बनना है बाबा जी, घंटा हिलाना है, कैसे होगा। 4 ऑब्जेक्टिव्स आईसी, हाँ 2 ट्रांजैक्शन और 2 एसेट है। Transactions are properly executed as per management's general or specific authorization. Transactions are properly recorded. Assets are safeguarded. Recorded assets are compared with the existing at reasonable intervals and prevention and detection of frauds and errors. दिक्कत हो रहा है तो बैठो, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहकर देखो, हम भी तो खड़े ही हैं। चलिए, पनिशमेंट नहीं है, बेटर कंसेंट्रेशन के लिए हम तो बोलेंगे वॉलेंटरीली आप लोग को बीच बीच में जब लग रहा है ध्यान नहीं आ रहा है, एक झापड़ अपने आप को मारो, खड़ा हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ, that is why auditor does not fully rely on internal control. Why an auditor does not fully rely on internal control? Why an auditor does not fully rely on internal control? Because there are some inherent limitations. इंटरनल कंट्रोल में कुछ कमियां रहती हैं क्या, जैसे सबसे बड़ा इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, कॉस्ट। कोई मैनेजमेंट ना इंटरनल कंट्रोल के ऊपर उतना ध्यान, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है ना, मैनेजमेंट में थिंक इंटरनल कंट्रोल इज वेस्टफुल। और इंटरनल कंट्रोल यूजुअल को, एक सेकंड, इंटरनल कंट्रोल यूजुअल को डिटेक्ट करता है कि अनयूजुअल, मुंडू तुम्हारा अनयूजुअल, इंटरनल कंट्रोल डिटेक्ट करता है यूजुअल को, नो कंट्रोल फॉर अनयूजुअल। इंटरनल कंट्रोल क्या भगवान संभाल रहे हैं कि ह्यूमन संभाल रहे हैं, तो ह्यूमन से तो एरर होगा ही, बनाया कौन है, तो मैनेजमेंट ही उसको अब्यूज करेगा और मैनिपुलेट करेगा। 315 इंटरनल कंट्रोल को
बनाता कौन है? ऑडिटर क्या करता है? ये 4 तरीके से चेक करता है। नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनर, फ्लोचार्ट। नैरेटिव रिकॉर्ड में उन लोग क्या करता है? डिपार्टमेंट्स में जाता है और डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका लिख लेता है। ये हो गया नैरेटिव रिकॉर्ड। फिर क्या? सेट ऑफ क्वेश्चंस। बाबा जी आप बताइए वापस से नैरेटिव रिकॉर्ड, नहीं तो हम आपको बाबा जी को भारी आज भेजेंगे। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? व्हाट इज नैरेटिव रिकॉर्ड? बाबा जी खड़े हो जाइए, बाबा जी बिजी है योग साधना में। अभी बताए नैरेटिव रिकॉर्ड क्या होता है? नैरेटिव रिकॉर्ड में क्या होगा? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑब्जर्व करेगा ऑडिटर। ऑडिटर विल विजिट, ऑडिटर along with the auditing staff will visit the various departments of organization, observe their manner of, make notes. Narrative record में auditor and his auditing staff will visit the various department, observe the manner of functioning. This is called what? Narrative record. Checklist में क्या होता है? Question answers रहेगा, yes, no, not applicable. Questionnaire is a detailed checklist. If the answer to any question is no, why? Flowchart is a diagrammatic representation. जिस चेकलिस्ट का अगर एग्जांपल दें, अगर मेरे को पता करना है कि परचेज का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, बोलो। परचेज का इंटरनल कंट्रोल, परचेज का अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है चेक करें, तो हम ये सब जाकर के चेकलिस्ट में पूछेंगे कि परचेज मैनेजर साहब अब वही परचेज कर लेते कि पहले टेंडर फ्लोट करते? ऐसे ही परचेज कर लेना चाहिए हम लोग को कि टेंडर फ्लोट करना चाहिए, और जो सबसे कम कोट करेगा उसी से परचेज करना चाहिए। हम लोग को टेंडर फ्लोट करके कोटेशन मंगाना चाहिए, लोएस्ट कोटेशन को हम लोग को परचेज करना चाहिए उससे। और परचेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए कि अलग अलग फॉर्म होना चाहिए, और ओरल होना चाहिए कि रिटर्न ऑर्डर होना चाहिए, और परचेज फॉर्म प्री नंबर होना चाहिए कि नॉट प्री नंबर। तो टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, परचेज रिटर्न ऑर्डर होता है ना, परचेज फॉर्म स्टैंडर्ड है ना, प्री नंबर है ना, पक्का। एग्जामिनेशन इन डेप्थ याद है, पिकिंग अ फ्यू सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन, चेकिंग फ्रॉम ओरिजिनेशन टू द वेरी एंड। सीएस यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम भी कंप्यूटर का उपयोग करेंगे तो व्हाइट बॉक्स, इसमें ऑडिटर, इट्स कॉल्ड ऑडिट थ्रू कंप्यूटर, ऑडिटर ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेगा, टेस्ट सॉफ्टवेयर कैट। ब्लैक बॉक्स मतलब क्लाइंट तो कंप्यूटराइज डेटा मेंटेन कर रहा है, लेकिन हाँ ऑडिट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। सीआईएस मतलब क्या हुआ? चाहे व्हाइट बॉक्स हो चाहे ब्लैक बॉक्स हो, क्लाइंट का डेटा कंप्यूटराइज है क्या? और हम भी अब सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, तो व्हाइट बॉक्स, विदाउट सॉफ्टवेयर तो ब्लैक बॉक्स। कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में खास बात क्या होता है? कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑलरेडी मेरे को तो कंप्यूटर में डेटा मिल रहा है, तो इनपुट का डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? इफ द क्लाइंट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डेटा, इनपुट डॉक्यूमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे उसका तो परचेज भी ईमेल में आया होगा, सप्लायर उसको फिजिकल परचेज मिल दिया होगा कि ईमेल में दिया होगा, समझ आ रहा है? तो सीआईएस में सबसे बड़ा दिक्कत आएगा एब्सेंस ऑफ, क्या बताओ ना, इनपुट डॉक्यूमेंट। एक विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं रहेगा। जैसे अगर फिजिकल अकाउंटिंग किया होता मैनेजमेंट, जर्नल मारता, जर्नल के बाद दिखाई देता ना जर्नल से लेटर पोस्टिंग लेटर ट्रायल बैलेंस, लेकिन यहां पर तो एक ट्रांजैक्शन ट्रायल नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा। क्या होगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में? जैसे ये जर्नल मारा, लेजर ट्रायल बैलेंस अपने आप बन गया रे बाबा। तो दिक्कत हो जाता है फ्रॉड एरर ढूंढने में। विजिबल आउटपुट नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक चीज आसान रहेगा, इजी एक्सेस टू, क्या बताओ ना, डेटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बहुत आसान रहेगा। नहीं तो फिजिकल फाइल्स में मेरे को फाइल रूम में ले जाता था, वहां पर बहुत सारा फाइल है, लेकिन कंप्यूटर में इजी एक्सेस टू डेटा एंड प्रोग्राम। इंटरनल चेक मतलब क्या होता है? डे टू डे ट्रांजैक्शन विच इज अ पार्ट ऑफ रूटीन सिस्टम। ऑडिटर्स 1000 बार पढ़ चुके हैं। ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क देख लो। सुनो, ऑडिट रिस्क क्या था? कोई बता सकता है? कौन सी रिपोर्ट दे देना? हाँ, ऑडिट रिस्क मतलब क्लियर रिपोर्ट दे देना, इन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैविंग सम मटेरियल। इसका उल्टा क्वालिफाइड दे दिया, एडवर्स दे दिए, जबकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं था। तो वो उतना चलता, वो रिस्क नहीं। क्लियर रिपोर्ट में रिस्क है।
और किसी रिपोर्ट में रिस्क नहीं समझा, बोलो पूरा लाइन। क्लियर रिपोर्ट में रिस्क है, किसी रिपोर्ट में रिस्क नहीं। पक्का? ऑडिट रिस्क क्या रहता है? क्लियर रिपोर्ट देना। पक्का? क्वालिफाइड एडवर्स दे दिए तो इसमें कोई रिस्क नहीं। पक्का? और जो क्लाइंट का धंधा का रिस्क है वो सब ऑडिट रिस्क नहीं है रे। देख, ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली, हम बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली व्हेन दे आर नॉट। उतना चलता है, हम क्वालिफाइड एडवर्स दे दिए, जबकि मटेरियल स्टेटमेंट हो सकता है नहीं। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम क्वालिफाइड एडवर्स दिए हम तो एग्जैक्ट रीजन बता रहे हैं कि नहीं बता रहे। पक्का? क्लाइंट के ऊपर एक केस चल रहा है, एडवर्स पब्लिसिटी हो रहा है, अबे ये सब ऑडिट रिस्क नहीं। देखो, ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, इट डज नॉट रेफर्स टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क। समझ में आया? तेरा जो बिजनेस रिस्क है, लॉस ऑफ लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी, ये सब ऑडिट रिस्क है क्या? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल कहां से पढ़ोगे, बता सकते हो कोई? वहां से याद कर लेना, ये पूरा वही है। आज जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं उसके क्या फायदे रहते हैं? प्री पैक जो अकाउंटिंग जैसे टैली वगैरह आता है, क्या फायदा रहता है? इजी टू इंस्टॉल है क्या? खर्चा कम लगता है? इजी टू यूज, बैकअप सिंपल। अब ये सब तो यार, और कस्टमाइज कराओगे तो क्या दिक्कत आएगा? मतलब इसी का दिक्कत बताओ ना, प्री पैक वाला के दिक्कत बताओ। कस्टमाइज करना पॉसिबल नहीं है, कस्टमाइजेशन नॉट अवेलेबल, पिक्युलरिटी स्पेसिफिक है। जो प्री पैक सॉफ्टवेयर है वो मेरे लिए बनाया होगा कि मास के लिए बनाया होगा? तो मेरा पिक्युलरिटी तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लैक ऑफ सिक्योरिटी है, बग्स मतलब प्रोग्रामिंग एरर, ये सब तो बच्चा वाला है ना। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं चैप्टर 4 में। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा लंबा टाइम करके रिमेनिंग चैप्टर्स ऑफ ऑडिट को क्या कर देंगे, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब है? वीडियो थैंक यू ना।